सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रियदर्श सुथार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी को जैसा कि मालूम है, मैं अपने वीडियोस में नए नए जो है गुर सिखाता रहता हूं और नए नए व्यक्तियों के बारे में परिचय देता रहा हूं। तो आज उसी कड़ी में आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो कि अत्यंत ही बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं, मेरे गुरु समान, मेरे पिता समान, जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ में अध्ययन किया और जिन्होंने अपना एक खुद का एक मुकाम बनाया। सो टुडे आई एम ग्लैड टू इंट्रोड्यूस टू यू द लेजेंडरी श्री सुरेंद्र सिंह जी चौधरी, who carved out his name and fame by dint of perseverance and sheer hard work in his life. So I am very much I am happy and I thank him for welcoming me here, and I just want to tell the world that this world is in dire need of such people who deliver in such a sensational way. So he has indeed delivered in his life, and we can call him a versatile genius because he left no stone unturned in searching new ways of improving himself. So today I just want to talk to him and I am very much privileged. And sir, I want to thank you for giving me this opportunity to talk with you. And this is indeed a rare privilege for me. Thank you. So you are like a father figure for me, and I just want to tell something about him that he has carved out his name and fame in music and in drawing, and above all he is indeed a magnificent teacher of English who served in various institutions throughout his career, and today he has achieved immense success in his life. So let me introduce to you Mr. श्री सुरेंद्र सिंह जी चौधरी। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो है आपका जन्म कहाँ पर हुआ? I was basically born in UP in 1944. अच्छा। Then I studied there up to class 12th as a science student. Then my father called me to Jodhpur. He was A-class contractor in PWD. Then he thought that he wanted me to become a doctor. So my science and biology streams were there for me. But coming here, I was very much ambitious about opting literature in my life. So I went for Hindi, English and Sanskrit as my optional subjects in graduation. तो गुरुजी, आपका जो है जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? अलीगढ़ जिले में। अलीगढ़ जिले में। और आप जो है वहीं पर आपका बचपन बीता? जो I came here at the age of 19. हाँ, तो आप हिंदी में भी थोड़ा बोलिए ताकि जो है दर्शकों को अच्छी तरह समझ में आ सके। हाँ, क्योंकि हम तो आपका जो है प्रसिद्धि जो है फैलाना चाहते हैं। We just want to spread your glory throughout this world. Yes. तो आप गुरुजी, आपका जन्म जो है मतलब अलीगढ़ में जिले में हुआ, तो बचपन की आपकी पढ़ाई जो है किस विद्यालय में हुई? वहाँ पर हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ हम पैदल जाते थे और 10th क्लास तक 1959 और 60 में मैंने 10th क्लास किया। 60 में आपने 10th क्लास किया और फिर उसके बाद में फिर आगे की पढ़ाई? ये तो मैंने 10th क्लास तक तो तहसील हेडक्वार्टर पर की मैंने स्टडी। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अलीगढ़ सिटी में 12th क्लास करने के लिए गया। 11th एंड 12th मैंने वहाँ से किए साइंस बायोलॉजी। So you are indeed a versatile genius because you have also studied science. So it means you did not leave any field untouched in this way. Because you are a student of science also. And you have got many hidden talents, and I think you have hidden your lights under a bushel so far. Yeah. So I don't think that your glory should be hidden in this way. Your glory should be spread rapidly throughout this world, because people may take a leaf out of your book. And they may also follow in your footsteps. Definitely. I also wish that whatever we have gained in our life, it should be given back to the society, because whatever we learn from the society. So we must pay it back by our experiences, by our learning, by our exposing our talents. All these things should go to the society back. बिल्कुल सर, आपने जो है
अपने जीवन में इतने तरह की विधाओं में प्रवीणता हासिल करने के बाद में यह साबित कर दिया कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। Definitely. आपने जो है उसी जो है कहावत को चरितार्थ किया है, क्योंकि आपने तो गुरुजी, तो पहले तो ये बताइए कि मैं आपको क्या कहूँ, एक संगीतकार कहूँ या चित्रकार कहूँ या अध्यापक कहूँ या आपको जो है साइंस का विद्यार्थी कहूँ, अब आप ही बताइए आपको जो है। मैं तो इसलिए जैसा मैंने अभी बताया, हम समाज से सब कुछ सीखते हैं, जो कुछ हमारा व्यक्तित्व बनता है समाज को देख करके बनता है, इसलिए समाज के प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि हम जो कुछ बने और कुछ करें वो समाज में जरूर उसका लाभ मिलना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सर। और जोधपुर में आपका कब पधारना हुआ? मैं 1963 में मैं यहाँ पर आ गया था, 1963 में। पिताजी ने मुझे बुला लिया था क्योंकि वो मुझे मेडिकल में भेजना चाहते थे डॉक्टर के रूप में, लेकिन क्यों साइंस में मेरे पास बायोलॉजी ऑप्शनल था और बायोलॉजी में मैथ्स होता नहीं है, इसलिए मैथ्स की वजह से मैं फिजिक्स में फेल हो गया था। तो पापा को शक हुआ कि मैं वहाँ शायद पढ़ाई ठीक नहीं कर रहा, उन्होंने यहाँ बुला लिया। फिर मैंने यहाँ पर आकर के तीनों लिटरेचर्स मैंने ग्रेजुएशन में लिए, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। So your father was also a legendary person in Jodhpur. Yeah. He was A plus contractor in Jodhpur, and at that time he was regarded among the richest persons of Jodhpur. Yes. So this is indeed a great thing on your part to be born in such a royal family. Definitely. And I think you must be proud of your father, because he indeed showed you the richness, and he indeed showed you how much glory we can gain in this world. Yes, undoubtedly. He was called the father of contractors that time because he got registered in 1958 as a C class contractor. Then he became A class contractor in 1960. उस समय सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं नहीं बन पाया और मैंने लिटरेचर में अपना करियर बनाने की कोशिश। आपने लिटरेचर में अपना, और आपने बीए में आपके क्या सब्जेक्ट थे? बीए में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। This is indeed a rare combination. Rare combination. Because one seldom comes across such a person who has got this kind of proficiency in his life, and it is a matter of great pride that he holds sway over all the three languages, whether it is Hindi, English or Sanskrit. Yes. So these people of these kinds are absolutely rare, and we must nourish them, we must conserve them, we must keep them in our minds so that we may also thrive rapidly in our respective fields. Yes. Because in today's world, the students don't even do good in their own subjects. Yes. And whereas you have achieved such a magnificent feat by reading the three literatures. Yes. This is indeed a Herculean task. You have indeed achieved a Herculean task in this life. Thank you for this, because मैं ऐसा सोचता हूँ कि 1965 में मेरी क्रियात्मकता मुखर हुई। तो गुरुजी आपकी क्रियात्मकता बचपन से ही थी कि मतलब बाद में ज़्यादा प्रकट हुई है? क्यों, मैंने जब साहित्य पढ़ा दूसरे कवियों के बारे में, तो मैंने कविता लिखना शुरू किया 1965 में, 1965 से पढ़ना। और आपने एमए कब किया? एमए 70 में किया। So you completed your MA in 1970, so that was a very big achievement at that time. Yeah, there were only 11 students in whole of university in MA English literature. English literature में केवल 11 विद्यार्थी थे उस समय। 11 विद्यार्थी थे उस समय। और उस समय तो गुरुजी फर्स्ट डिवीजन आना तो एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। होती थी, प्रोफेसर्स वगैरह भी सेकंड क्लास में होते थे, एक दो होते थे फर्स्ट क्लास पाते थे, बाकी ज़्यादातर हमें सेकंड क्लास वालों ने हमें जो प्रोफेसर थे वो पढ़ाया। लेकिन वो सेकंड क्लास ही आज के फर्स्ट क्लास से कई गुना बेहतर है। बिल्कुल गुरुजी, उस समय सॉलिड बेस बनता था, आजकल केवल परीक्षा को पास करने के उद्देश्य से हम पढ़ाई करते हैं, उस समय ज्ञान हासिल करने करते थे। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस में ग्रामर सबसे पहली आवश्यकता है। ग्रामर का बेस जिसका अच्छा होगा, व्याकरण जिसकी शुद्ध होगी, वही आगे चल के शुद्ध बोल सकता है, शुद्ध लिख सकता है। ये चीजें हमने वहाँ से सीखी। हाँ, we can't dream of building a castle on a weak foundation. So if I am also of your, I also
accept your opinion that a person who wants to achieve success in any language or anything, then his foundation must be Very solid. strong, yes. मतलब बचपन में अगर आप ग्रामर का अगर आपने सही ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्याकरण आपके अच्छी तरह से हिंदी इंग्लिश या संस्कृत किसी की भी क्लियर है, तो उस आधार पर आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। और गुरुजी इसके बाद में जो आपने एमए किया, तो एमए करने के बाद में फिर जो है आपने क्या अपना फिर जो है आगे का? मेरे पिताजी तो ये नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं कहीं भी किसी भी तरह की, लेकिन मैं क्योंकि साहित्य में कर चुका था तो मेरी इच्छा थी कि मैं शिक्षण कार्य करूं, यानी टीचिंग की मेरे लिए मेरी पैशन थी टीचिंग करियर के लिए। तो मेरे पास वैसे मुझे आवश्यकता नहीं थी कहीं जाने की, लेकिन संयोग ऐसा था जिस मकान को हमने खरीदा था 1968 में, वो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रहे थे राजस्थान के। अच्छा। उनके बहुत लोग मिलने आते थे, प्रिंसिपल्स वगैरह, तो उनको आवश्यकता थी इंग्लिश के टीचर की। तो उस समय मैं स्ट्रेट अवे आई वाज अपॉइंटेड एज लेक्चरर, आई मीन सीनियर टीचर। दैट टाइम इट वाज कॉल्ड सेंट गवर्नमेंट, हाँ नहीं प्राइवेट सर्विस। प्राइवेट से। ओके, उन्होंने मुझे बहुत ही आपने तो मेरे हिसाब से आपने तो काफी संस्थानों में अपनी सेवाएं दी है। कि मैंने लेक्चरर रहा मैं 11-12 साल। एक बार फिर पिताजी ने वापस वो छुड़वा दिया, मना करके कि उन्हें पसंद नहीं था मेरा नौकरी करना, इसलिए मुझे फर्स्ट ग्रेड की नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर मेरे लिए फैक्ट्री लगाई, चौधरी मोटर्स मेरे पापा ने मेरे लिए खोली थी 1969 में। चौधरी मोटर्स आज भी जोधपुर में मौजूद है, वो पहले मेरे लिए खोली गई थी, लेकिन बाद में किसी और ने हमसे खरीद ली, फिर किसी और ने आप खरीदी। जी हाँ। तो गुरुजी फिर आपने हिंदी में आपने कविताएं भी लिखी कुछ? हाँ, उसके बाद 65 में जैसे मैं पढ़ रहा था बीए में, हाँ, तो मैंने पढ़ते पढ़ते मुझे भी आभास हुआ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैंने लेखन शुरू किया कविताओं का। तो सब से शुरू किया, हिंदी में लिखना शुरू किया, इंग्लिश में भी मैंने पोएम्स वगैरह लिखी। तो गुरुजी ये तो आपका जो सघन अध्ययन था जो बीए में एमए में, मेरे हिसाब से उसी के परिणाम स्वरूप आपने जो इतनी प्रवीणता हासिल की इन सभी में जो है, क्योंकि ऐसे दुर्लभ ही लोग मिलते हैं जिनको हिंदी में भी जिनकी इतनी हो रुचि और अंग्रेजी में भी हो, और आप जो है हिंदी की कोई ऐसी कविता जो है आपको लगे जो आप हमें सुनाना चाहें, तो आप भले हमको यहाँ सुना सकते हैं कोई। हाँ, मैं 71 में जैसे मैंने ज्वाइन किया एज फर्स्ट ग्रेड टीचर, तो वहाँ पर क्या है, हिंदी मीडियम स्कूल था उस समय, तो वहाँ प्रेयर होती थी, तो मैंने वहाँ की असेंबली के लिए एक प्रेयर लिखी थी 1973 में। हाँ गुरु बिल्कुल, आप सुनिए। ऐसा संयोग था, जब से लिखी, पहले उस स्कूल में जब तक मैं रहा तब भी चली, उसके बाद में भी वो हमेशा के लिए लागू हो गई, उसको सुनाया करते थे उस संगीत के साथ। उसके बाद जहाँ जहाँ भी मैं रहा, कई पदों पर रहा बाद में, तो सभी जगह ये सुनाई जाती थी। तो मैं भी चाहूँगा आपको सस्वर सरस्वती वंदना के नाम से मैंने ये कविता लिखी, और वो आज असेंबलीज में गाई जाती है। हाँ बिल्कुल सुनाइए सर। अर्चना के पुष्प ये माँ तेरी सेवा में समर्पित, दान विद्या का दिला कर दो ये काया सुसज्जित। अर्चना के पुष्प ये माँ तेरी सेवा में समर्पित, मेरे जीवन का शुभारंभ तेरे मंदिर से ही होगा। लक्ष्य जीवन का बिना विद्या कभी पूरा न होगा, इसलिए ये वंदना माँ कर दो मम जीवन सुशिक्षित। अर्चना के पुष्प ये माँ तेरी सेवा में समर्पित, रूप मानव का बिना विद्या कभी अच्छा नहीं है, दानवों से भिन्न करने के लिए ये बुद्धि दी है। कामना तुमसे यही बस बुद्धि बल कर दो सुविकसित। अर्चना के पुष्प ये माँ तेरी सेवा में समर्पित,
अर्चना के पुष्प ये माँ तेरी सेवा में समर्पित। बहुत ही गुरुजी, इतने आपकी मधुर आवाज में सुना जो हम तो बिल्कुल ही मोहित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। योर वॉइस इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल एंड वी आर स्पेल बाउंड टू लिसन टू दिस मेलोडियस सॉन्ग एंड मेलोडियस प्रेयर. So I think well begun is half done. Yeah. So if in a prayer Yeah. we start the prayer assembly in a proper manner, then the education will be done smoothly throughout the day. I Yeah, think. definitely. And तो इस प्रकार आपके जो संगीत की रुचि वास्तव में ऐसे ही नहीं है गुरुजी, आपने वास्तव में साधना की है और इतने आपकी मधुर आवाज है, तो आपने उस आवाज के साथ न्याय किया है और आपने इस प्रकार ये सरस्वती वंदना गुरुजी आपने खुद ने लिखी? हाँ, मेरी आप खुद की रचना है, स्व रचना है। और उसके बाद मैं सुतार साहब जिन जिन संस्थाओं में रहा वहाँ इस कविता को जब भी उन्होंने सुना तो इसको असेंबली के वंदना के रूप में इसको हमेशा रखा सब जगह। उसके बाद मैं विद्यालय छोड़ने के बाद मैं कई जगह प्रिंसिपल भी रहा। प्रिंसिपल में रहा 2002 में मैं रिटायर होने के बाद। So you were also in administrative post. Administrative post also I have experience. तो 2002 में मैं as per the government rules that was 58 years of age that time, retiring age. So I retired in 2002. उसके बाद I was invited to serve as principal and In which is VV John Memorial School. Yes. VV John Memorial were also thriving rapidly at that time. At that time, that was the time. So they requested me to join there, and I served there as principal. 40 teachers का staff का वो था वहाँ पर strength, and I was principal there for few months. 3 months. और क्यों Sebastian John, he was my friend, so he requested me to join there. Now was Sebastian John's brother of George John? George John, yes. Okay. His brother had taught me in, he was a professor. He taught me in MA also. So these, I think they were 3 or 4 brothers: Abram John, George John, Sebastian John. Yes. And as you know, VV John was a legendary person who introduced many promising teachers in this university, yes. And this university was rich with those magnificent teachers. Yes. And he was indeed a man who revolutionized the entire university. Yeah. And the credit goes to him for acquiring such a huge campus. Yeah. A new campus has also been acquired under his supervision. So he must be remembered for every time. Yes, he was a great figure, undoubtedly. तो सर आपने अब हिंदी के तो अब कुछ इंग्लिश में भी आपने कविता लिखी है, हिंदी में लिखी? हाँ, मैंने इंग्लिश में लिखी कोई? इंग्लिश में भी लिखी है मैंने। कोई आप ऐसी जो एक आप टीचर वाली ये कविता है जो मेरे को आपने सुनी थी, ये पोएम वाली, ये टीचर कैसा होना चाहिए, वो वाली भी, या और जो है कोई आप अच्छी जैसे कोई इंग्लिश की पोएम है आप इसमें हमें सुनाइए जरूर। कोई ये किस बारे में है सर, थोड़ा बताना। Yes, I wrote it in 95 in loneliness. This is about love. Without, I mean, how close we feel when we are with our loving one. So it's with that. Without you, a little romantic. Yes. Because it was written in youth period. So I'm all alone and full of grief. It's all due to you. So come to relief. Your absence strikes me most in loneliness. I become prey to your grace and loveliness. I know you have your own constraints and cannot remove all my complaints. Yet your presence around is a source of pleasure. Your lovely look and sweet smile are a great treasure. I harbor them in my heart as a life that give me joy and comfort in hours of strife. Life is dark and dreary without you. I feel so sad, lonely, and aggrieved too. Come and see my sorrowful plight. It may rouse pity in your heart and sight. I am all alone and full of grief. It's all due to you, so come to relief.
This was बहुत ही आपने गुरुजी कितने शानदार पोएम जो है रोमांटिक पोएम एंड द वर्ड्स यू यूज्ड आर एब्सोल्युटली स्पेल बाइंडिंग। सो तो इस प्रकार जो है आपने ये तो वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड वी हैव रेड दीज काइंड्स ऑफ पोएम्स इन आवर लाइफ, सो these things do incite some kind of yes, fire in us yes. to write these poems and तो इसके बाद में एक आपने टीचर पर भी ये जो है पोएम इसमें लिखी थी। हाँ, पोएम भी थी और उसका हाँ नहीं तो और कौन सी है और कोई बताइए टीचर के ऊपर। तो सर ये छंद रचना आप कैसे करते हैं फिर वो? हाँ, कोई भी टॉपिक कोई भी हो या कोई चीज उस समय स्ट्राइकिंग मुझे लगती है उसी को ऊपर मैं कुछ लिख लेता हूँ। उस पर है क्या हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है और काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह मेरे कई पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर्स में भी, मैगजीन्स वगैरह में। तो ये सर आपकी जो कविताएं हैं हिंदी वाली तो ये पब्लिश अभी तक आपके मतलब आपने करनी है? कर नहीं पाए। मैंने प्रिंट एक फर्स्ट कॉपी तो बना रखी है लेकिन वो प्रिंट पूरी नहीं हो पाई है, तो उसके लिए होता है। तो हम सब भी ये चाहते हैं अब कि आप जल्दी से जल्दी अपनी इन कविताओं को पब्लिश करें और समाज के सामने लाएं ताकि सबको आपकी प्रतिभा का मालूम पड़ सके कि आप जो है ये मेरी भी ये छुपा कर नहीं रखें जो भी है। हाँ, ये भी मेरी भी ये अभिलाषा है कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि आपके हजारों लाखों विद्यार्थी आपसे पढ़कर गए और वो भी जो है जब देखेंगे कि हमारे गुरुजी ने इतना अचीवमेंट किया है तो उनको भी दे विल आल्सो फील प्राउड। या डेफिनेटली मेरा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया शिक्षक का जो पद है, जो स्थान है, जो गरिमा है समाज के अंदर, उससे सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। क्योंकि शिक्षा से ही जितना विकास हुआ है हमारे पूरे संसार में, शिक्षा के कारण ही हुआ है। शिक्षा न होती तो हम अन्य पशु पक्षियों की तरह ही हमारा भी जीवन ऐसा ही रहता, क्यों हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर पाते और कुछ भी नहीं करते, रचनात्मकता इस जीवन में होती ही नहीं उसके बिना। इसलिए मैं शिक्षक के लिए मैंने जहाँ भी मैं रहा प्रिंसिपल के रूप में या अध्यापक के रूप में, तो मैंने अपनी ओर से कोशिश की मैं शिक्षकों को भी इसके बारे में उनका महत्व बताऊं कि आप कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं समाज के अंदर। हाँ, यू आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द सोसाइटी एंड द एंटायर सोसाइटी रिवॉल्व्स अराउंड यू। ओनली टीचर। तो मैंने एक लिखा है उनके लिए 2003 में ये, हे शिक्षक, क्या आपको आभास है मानवों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इस भूमंडल पर जो भी सभ्यता है वह शिक्षा की बदौलत है। शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न सभी लोग भाग्यवान और महान हैं। शाला स्वामी, शिक्षक और शिक्षार्थी, इनमें शिक्षक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायी व्यक्ति होता है, क्योंकि शिक्षार्थी का भविष्य व व्यक्तित्व निर्माण उसी के हाथ है। कच्ची उम्र का बालक माँ बाप से भी अधिक अपने गुरु को ही अपना आदर्श मानता है। इसलिए आप विचार करें कि क्या आपका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली है। यानी आप कक्षा में जाते हैं या आप कभी भी किसी विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को, तो आप कैसे होने चाहिए उसके ऊपर। अपन तो शायद आप एक बार बीच में टोक रहा हूँ कि अपन तो शायद इतना ध्यान दे रहे हैं बच्चा अपनी हर एक हरकत को नोटिस करता है। ही हैज अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन। उसका जो देखने का आपकी तरफ है वो एक हर तरह से सीखने की भावना से, कैसे हम कैसे बनेंगे, आप कैसे हो, तो उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है। तो हमें बच्चों को ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व जो है कितने हर समय लोग देख रहे हैं, हम उनके कैमरा में हर समय, और वो हमारी व्यक्तित्व का उनके व्यक्तित्व पर भी मतलब जब हम विद्यालय परिसर में या कहीं पर भी कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, अपन तो विद्यालय की बात करेंगे, अपन तो शिक्षक हैं, तो प्रवेश करते अपने को सोचना चाहिए कि हमारी तरफ कई निगाहें हैं। हाँ, इसलिए हमें बहुत जिम्मेदारी से अपने काम को निभाना है। गुरुजी, आजकल के जो शिक्षक हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए कि जो है क्या स्थिति हो गई है कि अब जो है पहले वाली बात नहीं रही, अब शिक्षकों में भी जो है वो इतनी बात अब रही नहीं पहले की जितना। समर्पण की भावना, त्याग की भावना नहीं रही, कल्याण की भावना भी नहीं है कि हमें क्या विद्यार्थियों को अच्छे इंसान बनाए। क्यों आजकल क्या है, सब कुछ है क्या एक मार्केटिंग के ऊपर हो रहा है, कॉमर्शियल एटीट्यूड है हर व्यक्ति का कि हमें पर सिर्फ पैसा कमाना, हम पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम पैसा कमा सकें, जबकि ये एक अंग है बस जीवन का, पूरा जीवन नहीं है। पहले गुरुजी चरित्र की शिक्षा दी जाती थी।
मतलब जो है चरित्र को सर्वोपरि रखा जाता था, एंड वी रिगार्डेड दैट कैरेक्टर इज द बेटर पार्ट ऑफ वेल्थ, Yes. एंड इफ wealth is lost, nothing is nothing is lost. lost. If health is lost, Something is lost. and if character is lost, everything is lost. And that we regarded very important, character was regarded very important in previous times, but I think today we have slowly started forgetting the importance of character. Yes, definitely. So this is the declining position. Declining very So do you much. also deplore the fact? Yeah, definitely. It's highly deploring attitude in parents as well as students also. They are not thinking about the character, how much it will reflect in the society when they become some important person, a reliable and responsible personality in society. So that's also a very Deplorable thing and condition. very concerning thing. Yes. I think. तो इसीलिए कक्षा में जाते समय मैंने क्या रखा है, जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर क्या मतलब सीखा। क्या उनका लक्ष्य होना चाहिए हाँ, अध्यापक? अपने हाँ, अध्यापक। हाँ, बताइए सर, बताइए। इसलिए आप विचार करें कि क्या आपका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली है, यानी आप जाएं तो यू मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग अपॉन अदर्स, यू मस्ट बी एन अट्रैक्टिव, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट्स also. आपका व्यक्तित्व आकर्षक प्रभावशाली है, आप स्वयं स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुंदर दिखते हैं। हाँ, देखने में आप है क्या, आप आकर्षक होने चाहिए, स्वस्थ भी होने चाहिए, स्वच्छ भी होने चाहिए और सुंदर भी दिखने चाहिए। आपका व्यवहार संतुलित और शालीन है। शालीन। यू मस्ट बी बैलेंस्ड एंड वेरी ग्रेसफुल बिफोर स्टूडेंट्स। आपकी वाणी संयमित, स्पष्ट और शुद्ध है। योर लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी वेरी मच बैलेंस्ड, पोलाइट एंड क्लियर। क्लियर। आपको अपने विषय का पूरा ज्ञान व आत्मविश्वास है। आपको अगर अपने ज्ञान का विषय का ज्ञान पूरा होगा तो आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। तो सर आप बहुत ही जरूरी बात बता रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि अध्यापक को कक्षा में प्रवेश करने से पहले पूरी पूर्व तैयारी करनी चाहिए, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ताकि सबसे बड़ी बात है। If we enter the classroom in absent minded, then how will we expect the students to learn something? आप स्वयं नियमित व समय के पाबंद हैं। समय when you are regular, you are punctual. punctuality. क्लास में you are entering every day at the same time appointed for you. So they are also picking up these things. This also matters the most. Yes. आपकी स्वयं की आदतें सभी के लिए अनुकरणीय हैं। आपकी जो हैबिट्स हैं कि आप कैसे मूव करते हैं, कैसे अपने काम को संभालते हैं, कैसे हर एक से व्यवहार करते हैं, ये सब चीजें आपका विद्यार्थी हर समय आपको देख रहा है। अच्छा, आपके शिष्य आपके ही बच्चों के दूसरे रूप हैं। यू शुड कंसीडर देम एज योर ओन चिल्ड्रन। This is the most important thing I think. Yes, yeah, different. That we must not regarding them that they do not belong to us and they are just students. उस तरह से नहीं, They are no less than our children. चिल्ड्रन। Or children. जितना हम अपने बच्चों के, स्वयं के बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं, उनकी भविष्य की चिंता करते हैं, इसी तरह आपको उनके साथ भी व्यवहार रखना चाहिए। आप स्वयं भी जब छोटे थे तो ऐसे ही थे, इसलिए आपको अब वो बातें याद रखनी चाहिए कि हमें भी ऐसा लगता था, हमें कोई सिखाए बताए तभी हम सीखेंगे। इनके माँ बाप ने आपके भरोसे ही इनको आपको सौंपा है। ये आखिरी लाइन मेरी पेरेंट्स के लिए है कि वो आपको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि उनके घर से निकल के आपके पास आ गए, तो वो उसी तरह आप उनके माँ बाप। They have entrusted them to our care. They have entrusted. तो हमें भी ये बात गुरुजी बिल्कुल आपकी अच्छी बात है कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो हमको माँ बाप सौंप कर गए हैं और हमें उनके साथ पूरा न्याय करना चाहिए। और गुरुजी आपने कुछ चित्रकला भी आप जो है उसमें भी आपकी रुचि है। उसी समय से 1965 was the year in my life of creativity. I picked up my creativity almost in the same year. Drawing, painting. So all these things started simultaneously. Simultaneously, I kept doing all these things in my. बहुत ही गुरुजी आज अच्छा लगा आपसे चर्चा करके और आपके बारे में इतनी जानकारी हासिल करके कि आपने जीवन में कितनी उपलब्धियां अर्जित की और अभी भी आप you are still striving tirelessly in your life, and this must be the sole aim of all the people, that we must not give up hope and we must not give up doing hard work. Yes. Because there is a saying that failure seldom stops us. Correct. What stops us is fear of failure. Very good. If we keep striving in our life tirelessly,
indefatigably, then we will certainly achieve immense success. So आज जो है आपके साथ में इतनी चर्चा करके आपने जो हमारे लिए अपना अमूल्य समय निकाला, और हम ये चाहते हैं कि अब आपकी जो भी अनपब्लिश्ड वर्क है, आई वीड जस्ट वांट दैट योर अनपब्लिश्ड वर्क should come to light. Yeah. People should read them so that they may also take a leaf out of your book. Well, surely, I also wish this. हाँ, तो अब आपको बस आगे अपनी इनको छपाना है पुस्तकों को, इसमें Yeah. मैन्युस्क्रिप्ट जो है Yeah. उसको आप पब्लिश करना है, ताकि जो आपका जो व्यक्तित्व है वो Yes. सबको मालूम चल सके। तो बहुत ही आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। Thank you very much, sir. बहुत अच्छा।